should we start? First, I would like to warm welcome you, all of you, and welcome all of you from Waves Women Empowerment Trust. At Waves, we work for the women empowerment, where we focus on helping women. I myself is Neha Bhatia, and I will be the host of the evening for this wonderful writing analysis workshop, where we will be helping you to analyze your personality traits and correct the correct way of signature and many more things. And I would like to welcome our prestigious guest, Ms. Neeru Gupta, ma'am, who is a certified graphologist. And not only this, she is an interview coach, life coach, and a counselor too, along with her assistant, Fatima ma'am, who is a friend of Neeru ma'am also, and she's a graphologist and a social worker. I will really welcome you, both of you, ma'am, and thank you for collaborating with us. It's pleasure being with you and with everybody here in the audience today. Am I audible? Yes, very much. So, uh, on behalf of the Waves NGO, once I would like to thank you for giving me this opportunity and organizing this uh, webinar for the development of women, especially, and of course, it's for everybody. And it's an honor and pleasure for me that my sir and mentor, who has given me this much knowledge to be able to speak on the platform about the subject of graphology, Mr. Rajesh Chauri, sir. He's also there. So, sir, welcome on the session. And with all respect, thank you to you. From the whole team of Waves Women Empowerment, we welcome you, sir. Uh, Neha, there's something else you would do. No, ma'am, you can start the session. Thank Okay, you so much. wonderful. So, if I can request my prestigious audience, we can be on camera. That would really help me. So, I hope the screen is visible to everyone. Yes, ma'am, it's visible. So, welcome to all of you. Just to brief you about what is going to happen in today's session. कहीं पर भी आवाज समझ में नहीं आए. May I ask how many of you are comfortable with both languages, English and Hindi? Yes, ma'am. Anyone who is Actually, I would like to add on that some of our audience prefers English and some prefers Hindi. So it would be great if you could be bilingual. या बट दोनों समझ में आएंगे इंग्लिश भी हिंदी भी जहां नहीं समझ में आए दे कैन डेफिनेटली आस्क ओके सो yeah, so what we will cover in today's session is it's as the name is self-explanatory graphology, handwriting analysis, and signature analysis workshop. But the key thing is that आज के टाइम में लिखना बहुत ज़रूरी है. Writing is very important. Why it is important and why we are refraining or going away from handwriting is a big serious social concern. तो ये चीज़ को मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी और मैं पूछना चाहूँगी अपनी ऑडियंस से कि एक हफ्ते में हम लगभग कितना लिखते हैं, हाउ मेनी पेजेस वी आर राइटिंग एज ऑफ टुडे, आज के समय में प्रेजेंट में हम एक हफ्ते में लगभग कितना लिख लेते हैं. या ऑडियंस इज अलाउड टू अनम्यूट राइट? Half Yes, ma'am. page or one page? ओके, बाकी लोग, व्हाट अबाउट अदर्स? वंडरफुल. Kanta ji has been writing. Audience can unmute themselves or you have to unmute, Neha? No, ma'am, they can unmute themselves. Okay, Kanta ji raised her hand. Wonderful. तो
हम लिखने की जब बात करते हैं तो लेट्स सो दैट इज व्हाट वी विल सी, एंड देन ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक्स, जैसे आप भी किसी के मतलब जैसे आपके सामने कागज आता है, लिखा हुआ कागज आता है, तो उसको देख करके कुछ चीजें आप भी पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। सेम चीज सिग्नेचर के बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो सी कि जो हमने लिखने से इतना हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जिनको लिखने से, जिनको हम ग्राफो पैटर्न्स की अपनी ग्राफोलॉजी की लैंग्वेज में ग्राफो पैटर्न्स बोलते हैं, और हमारे राजेश सर ने ही वो चीज़ इंट्रोड्यूस की है। तो वो किस तरीके से रेमेडियल राइटिंग की तरह, एक थेरेपी की तरह हमारे जीवन में बहुत सारे पहलुओं में हमें मदद करती है। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न्स भी आज के सेशन में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और अगर आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़र्क मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप ही मुझे बताएंगे। तो प्लीज़ स्टे टिल द एंड ऑफ द सेशन एंड बी इंटरैक्टिव। आप जितना इन्वॉल्व होकर के इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट अ प्रॉपर हैंड राइटिंग सैम्पल। आज के सेशन के बाद में आपकी क्यूरियोसिटी तो ज़रूर जगेगी, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अरे काश मैं पहले सैम्पल लेकर के बैठा होता था, आई थिंक वी हैड कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस। तो अगर है आपका सैम्पल तो लेकर के बैठ जाइएगा, नहीं है तो A4 शीट पर अपने मन से अपने बारे में जो आपके मन में विचार है वो आप लिख दीजिए। ग्रामर सही है, क्या सही है, स्पेलिंग सही है, नहीं है, वो नहीं सोचना है, सिर्फ आपको लिखना है। और वो लिखने के बाद में एंड में जो आपके ऑफिशियल सिग्नेचर हैं, जो बैंक में और डॉक्यूमेंट्स में आप यूज़ करते हैं, वो 3 बार आपको साइन करने हैं, और आज का डेट डाल करके, आज का डेट मीन्स जिस दिन आप सैम्पल बना रहे हैं वो डेट डाल करके आप वेव्स एनजीओ के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं, मेरे को शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ सैम्पल, जिससे आपकी पर्सनालिटी का ज़्यादा क्लैरिटी से हम लोगों को पता चल सकता है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज राइटिंग। तो अगर मैं पूछूं आप क्या समझते हैं, आपके हिसाब से लिखना क्या, लिखना मतलब क्या, व्हाट इज हैंड राइटिंग? क्या होता है जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं, और जब हम कहते हैं कि लिखना बहुत जरूरी है, तो एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा होता है? ऐसे एनीबडी? पेशेंस और कंसंट्रेशन का एक मतलब वो दिखता है हमारी हैंडराइटिंग में। वंडरफुल। और कुछ हो रहा होता है हमारे हाथ लिख रहा है, हैंड इज राइटिंग, उसके सिवाय और कुछ चल रहा होता है उस समय साइमल्टेनियसली? ब्रेन में चल रहा होता है। ब्रेन में चल रहा होता है। वंडरफुल अनामिका जी, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? Is anybody would want to add to this? तो हम देखते हैं कि राइटिंग मतलब कि हाथ से हम कुछ लिखते हैं, वो रिटन फॉर्मेशंस होती है, वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की हो सकती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट राइटिंग वन आवर पर्सनालिटी कम्स ओवर द पीस ऑफ पेपर। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो सबकॉन्शियस अवचेतन मन में जो चल रहा होता है, वो हमारी राइटिंग के द्वारा कागज के ऊपर दिखाई दे जाता है। और उसको ही पढ़ने की जो साइंस है, जो विद्या है, उसको हम ग्राफोलॉजी बोलते हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो राइटिंग जो है वो तो हो गया पेन और पेपर लेकर के, या पेंसिल और पेपर लेकर के हम कुछ लिखते हैं। लेकिन आज के टाइम में मेजॉरिटी लोग जिनसे हम भी संपर्क में आते हैं, वो कहते हैं कि why write in today's time, you know everything is so digital, you require digital notes, it's so easy, वॉइस टाइपिंग भी आ गया, अभी तो चैटबॉट है, AI वगैरह सब आ गया, चैट जीपीटी वगैरह, तो लिखने की जरूरत ही क्या है? ऐसा आप में से किसी को लगता है कि सब कुछ तो इतना इजीली, लाइफ तो चल ही रही है, सब कुछ चल ही रहा है, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है इस डिजिटल वर्ल्ड में? लेट टेक्नोलॉजी सर्व अस ना। पर लिखने से कामनेस आती है। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। ओके, और कांता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस मैम, ऑफ कोर्स। आई थिंक लिखने से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वंडरफुल। जो फीलिंग्स हैं हम उनको लिख सकते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें ऐसे डिजिटली नहीं हो सकती जो नेचुरली निकलती है लिखने से। वेरी ब्यूटीफुली सेड। तो आप लोगों ने सही बताया। तो लिखने से हमारे को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और डिजिटल स्क्रीन को देखने से मेरे ख्याल से कोई भी अछूता नहीं है डिमेरिट्स का। मैं डिमेरिट्स की, या क्या नुकसान हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी आंखों को, हमारे ब्रेन को हो रहा है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। गूगल कैन गिव यू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन आज के टाइम में जहाँ डिजिटल डिटॉक्स की हम बात कर रहे हैं,
तो लिखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ में हमारी जो बुद्धिजीवी क्षमता है, जो ब्रेन का रिकॉल करने की कैपेसिटी है, वो घटता जा रहा है। एआई के ज़माने में अगर आपका खुदा न खास्ता मोबाइल की कोई तकलीफ हो जाए, तो शायद आज के टाइम में आप एक भी नंबर याद नहीं कर पाएंगे ऑल्टरनेट जिसको इमरजेंसी में कॉल किया जाए। आज अगर 2-4 नंबर फिर भी याद होंगे, लेकिन आने वाले 10 साल बाद शायद वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए लिखने से हम अपनी याद शक्ति जो है उसको, मेमोरी पावर को, रिकॉल पावर को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे जो हम आगे बात करेंगे, उनमें भी हमारे को बहुत सारा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। तो इसलिए जितना हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम एक रेमेडी की तरीके से कागज़ और कलम से अपना रिश्ता जो है वो मजबूत बनाएं और उसको पीछे ना छोड़ें। अब हम बात करते हैं कि हैंड राइटिंग, तो वास्तव में हाथ नहीं लिख रहा होता है, हिंदी में हस्ताक्षर कहते हैं। तो वास्तव में जब हैंड राइटिंग को अगर हम सही तरीके से कहें, तो वो हो जाएगा हमारा ब्रेन राइटिंग। यहाँ पे ये दिखाया है कि कोई भी चीज जब हम कागज और कलम लेकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में ऑलरेडी उस कागज को देखते ही एक इमेज बन जाती है कि हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ये एक सटल एक्टिविटी है जिसमें हमारा ब्रेन और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन जो है, और हमारा मस्तिष्क जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ब्रेन से कुछ सिग्नल्स या कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स जो है वो निकलती हैं। अब वो ब्रेन से निकल करके आपके फिंगर्स के माध्यम से पेन और पेपर जो है, तो हम कह तो रहे हैं हैंड राइटिंग, बट इज इट नॉट मोर अप्रोप्रिएट अगर हम बोलें कि ब्रेन राइटिंग? क्योंकि सब कुछ तो ब्रेन कर रहा है, हाथ को इंस्ट्रक्शंस ब्रेन दे रहा है, सबकॉन्शियस ब्रेन को गवर्न कर रहा है कि क्या पर्सनालिटी के ट्रेट्स हमारे कागज पे लिख करके आते हैं। यस, डू यू एग्री एवरीबॉडी? Yes, ma'am. अभी तक आर यू एबल टू रिलेट विद व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई वुड रियली अप्रिशिएट, थोड़ा कैमरा अगर सब ऑन करेंगे ना, तो मुझे भी लगेगा कि सब मेरी बात ही सुन रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। सो ब्रेन राइटिंग, जब हम इस बात के महत्व को समझ पाते कि एक्चुअली जो हैंड राइटिंग है वो ब्रेन राइटिंग है, तो उस चीज की पावर और पोटेंशियल को यूज करना भी संभव हो जाता है। इसलिए उसके नीचे मैंने लिखा है कि ब्रेन राइटिंग, वेयर राइटिंग इज RIGHTING। RIGHT राइट हम सभी समझते हैं, और हम अपनी जिंदगी में कोई भी रॉन्ग चाहता है क्या? We want to do everything right, we want to be right, and we want everything right for ourselves in the lives. हम जिंदगी में सब कुछ तो सही चाहते हैं, उसी के लिए इतनी भागदौड़ और इतनी रेस लगी हुई है। तो वो सब राइट करने की क्षमता जो है वो भी आपकी हैंड राइटिंग में है या कहीं ब्रेन राइटिंग में है। इसलिए उसको एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर हम कहें ब्रेन RIGHT राइटिंग, तो वो भी सही होगा। बिकॉज व्हेन यू राइट, आप हाथ से जब लिखते हो, आपके ब्रेन से सिग्नल आते तो वो हाथ के द्वारा, कलम के द्वारा कागज पर उतर जाता है। अगर आप कागज पे कुछ ऐसा लिखें जिसका रिवर्स सिग्नल आपके ब्रेन तक जाए और ब्रेन के बाद सबकॉन्शियस तक जाए, तो क्या वहां जाकर के वो असर नहीं डालेगा? डेफिनेटली डालेगा। एंड दैट इज द पॉइंट कि ग्राफोलॉजी को समझने से, लिखने की ताकत को समझने से, पावर ऑफ हैंड राइटिंग को अनलीश करने से ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमको मिल सकते हैं। फोकस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना है, स्किल एनहांसमेंट है, आपका करियर को, रादर देन आज के टाइम में ये बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत कॉमन चीज हो गई है। यू मूव इनटू अ करियर, यू स्पेंड सो मेनी इयर्स, यू इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग, and after that once you become become that professional, you feel this is not for me, I am in a wrong place। या तो आप वो सोचते सोचते अपनी जिंदगी काटते हो, या तो आप उसको छोड़ करके फिर से जीरो से स्टार्ट करते हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी यूज द पावर ऑफ ग्राफोलॉजी एंड हैंडराइटिंग एनालिसिस इन द राइट वे। तो लिखने की कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर है, वो इस बात से मैं आपने रखना चाहती हूँ आप सबके सामने। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ग्राफोलॉजी या हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है उसमें बहुत सारा कॉमन सेंस है और थोड़ा सा ही हमारी मेहनत जो है वो इन्वॉल्व होती है।
तो कॉमन सेंस की हम बात देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें से आप बताइए कि हु इज एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, कौन एक्सट्रोवर्ट होगा? एक्सट्रोवर्ट, आउटस्पोकन, आउटगोइंग, ए या बी? बी। पहले वाला बाद वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला? बड़ा वाला। ओके, एनीवन फॉर छोटा वाला? अच्छा, बड़ा वाला क्यों होगा? हु सेड दिस? मैं, अनामिका। अनामिका। ओके, अनामिका जी क्या आप बताएंगे आपको ऐसा क्यों लगा कि बड़ा वाला होगा? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट मीन्स एक्स्ट्रा एंड मतलब अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बताना। तो जो हम, बड़ा वाला कैसे एक्सट्रोवर्ट होगा? ऐसा मुझे फील क्योंकि वो हर चीज को बड़े तरीके से करना चाहता है, खुल करके अपने को एक्सप्रेस कर पाता है, ज्यादा जगह यूटिलाइज कर रहा है, वो लोगों से शाय अवे नहीं कर रहा है, हाँ, उतनी जगह को ऑक्यूपाई करने का स्टैमिना रखता है, अटेंशन से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सब हाँ, उसको देख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। तो ये कॉमन सेंस को थोड़ा सा अगर हम यूज करते हैं तो भी हम समझ पाते हैं कि जिसने पेपर को इस तरीके से यूटिलाइज किया है तो वो पर्सन की शायद पर्सनालिटी कैसी होगी। एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी शॉर्ट थिंग्स। तो इन थोड़ी छोटी छोटी बातों को समझ के डू नॉट फील दैट यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट, बट ऑफ कोर्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि ग्राफोलॉजी में हर चीज का लॉजिक है और काफी सारे लॉजिक जो है वो कॉमन सेंस से जुड़े हुए हैं। लाइक अगर हम इसमें देखें कि कौन सा पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा? छोटा वाला। नहीं, द नेक्स्ट वन। ओके, वन सेकेंड, द स्लाइड इज नॉट चेंज्ड। या who will hold back his feelings? कौन सा पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा? ए। ए, वंडरफुल। और कोई पर्सन आंसर्स देंगे? Yes, anybody else will try to give the reason, and there is no right and wrong answer because अगर हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिवली उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाता है। हाँ जी, anybody who would want to try guess? खुशी जी, राजकिशोर जी, एनीवन? अनामिका जी आप बताएंगे, आपने क्या सोच के बोला कि ए वाला अपनी फीलिंग्स को होल्ड क्योंकि करेगा? ए वाला बहुत जैसे डर डर के लिखना और बहुत ही मतलब बहुत कंस्ट्रेंड है जिसने भी लिखा है उसको। ओके, तो what मेरा एक क्वेश्चन है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ये तो बड़ा जेनरिक वाला टर्म हो गया। यस सर, ये जेनरिक है बिकॉज इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें देखने से पता चलता है कि शायद ये पर्सन अपने को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ग्राफोलॉजी इज मच डीपर, तो पर्सनालिटी को पूरा समझने के लिए तो इट इज नहीं, मल्टीपल सेट ऑफ ट्रेट्स। आपने पूछने के लिए बोला इसलिए मैंने पूछा। ये आपको क्या दिख रहा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप इसको ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। So there are so many other things also. Yes. Absolutely. So make it more precise. Yes. Okay. So this is in a layman's language कि अगर किसी का राइटिंग, जैसे हम ऐसे भी अगर पर्सनालिटी के हिसाब से देखते हैं, इफ अ पर्सन इज लीनिंग फॉरवर्ड तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पास बहुत क्लोजली आ रहा है, बहुत एक्सप्रेसिव होकर के अपनी बात को कह रहा है। और अगर कोई ऐसे होता है लाइक यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है। सिमिलरली जो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है वही हैंड राइटिंग से भी पता चलता है। दैट इज द पॉइंट कि कुछ चीजें हैंड राइटिंग में, ग्राफोलॉजी में हमारे को पर्सनैलिटी की कॉमन सेंस से पता चल जाती है। Now I want all of you are ready with pen and paper. So I want you to draw this. एक बार ट्राई करके देखिए और उसमें देखिए कि कौन से में आपको कौन से इमोशंस फील होते हैं, कैसा फील हो रहा है। सो एक है गार्लैंड शेप, राउंडेड थोड़ा उस तरीके से बनाइए, और एक है शार्प एंगल्स वाला जिसमें शार्प एजेस है दोनों साइड। इट्स लाइक अ वी इन कंटिन्यूएशन। कैसा फील हुआ?
किस किसने लिखा एंड बताइए, आप शेयर करिए कि आपको कैसा फील हुआ। एनीवन हु इज शेयरिंग? किसको लिखने में अच्छा लगा, मन को इजी फील हुआ? मैम आई फील राउंड द वाला फ्री या हैंड इज मोर बेटर, लाइक फ्रीली लिख पा रहे हैं उसको, बट दैट राउंडेड वर्ड में ऐसा लगा कि फोर्स आ रहा है, लाइक फोर्सफुली लिख राउंडेड में रहे फोर्स आ रहा है? हैं। यस मैम। ओके, मुझे अपोजिट लगा, द राउंडेड वन इज लिटिल easy and we'll come to that. And खुशी जी, I would appreciate कि आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, बट यू ट्राइड वंस अगेन, ठीक है? क्योंकि हमारी जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं एंगल्स बनाने में, वो जब तक टेंस नहीं होती है तब तक वो फॉर्मेशंस हम नहीं कर पाते। Nevertheless, I appreciate you answering. अब हम बात करते हैं प्योर ग्राफोलॉजी की, क्योंकि ग्राफ मतलब हम स्कूल में जब ग्राफ की बात करते थे तो लाइंस की एक पर्टिकुलर शेप्स होते थे जिसको हम ग्राफ बोलते थे। तो वास्तव में हैंडराइटिंग, क्योंकि हमने बचपन में सीखा कि ऐसे शेप बनाते तो ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, इसलिए उनका पर्टिकुलर मीनिंग है हमारे मन में, हमारे ब्रेन में। बट अदरवाइज वो लाइंस अपने आप में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उन्हीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को या हैंडराइटिंग को जो ग्राफोलॉजिस्ट हैं, जो हैंडराइटिंग एनालिस्ट हैं, वो उसको पढ़ के डिसाइफर कर सकते हैं, पर्सनालिटी को समझ सकते हैं उसके माध्यम से। इसलिए इस विद्या को, इस साइंस को, विच इज प्योर साइंस, प्योर लॉजिक, प्योर रीजनिंग, उसको ग्राफोलॉजी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं ग्राफोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट है जिसको कहते हैं मार्जिन्स। तो मार्जिन्स का मतलब क्या है कि आपका सोसाइटी के साथ में रिलेशनशिप कैसा है, हाउ डू यू रिलेट विद सोसाइटी एंड हाउ इज योर, मतलब हाउ कंसर्न यू आर विद सोसाइटी। और इस चीज को देखने से मोटी मोटी जो बातें हमें पता चलती हैं, वो दो मार्जिन को हम कवर करेंगे, एक है लेफ्ट मार्जिन और एक है राइट मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन की जब हम बात करते हैं तो आपने स्कूल की नोटबुक्स में भी देखा होगा, जब हम छोटे थे तो पेपर में एक स्कूल की नोटबुक में लाइन बनी हुई होती थी रेड कलर की, और उस लाइन के हिसाब से हम स्पेस छोड़ करके लिखा करते थे। बट जैसे जैसे बड़े हुए, वी स्टार्टेड आवर ओन रूल्स एंड वी हैड आवर ओन पर्सनालिटी। इसी कारण से हम सैंपल जो है वो अनरूल्ड पेपर पर लेते हैं, ताकि पर्सनालिटी के सारे ट्रेट्स जो है वो आपके दिखाई दे उस पेपर के ऊपर में। तो लेफ्ट मार्जिन जो है वो आपके रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो ग्राउंडिंग है, कल्चरल बॉन्डेज जो है वो कितनी स्ट्रांग है, आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सिक्योरिटी और आपके कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट मार्जिन्स। और राइट मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं तो राइट मार्जिन्स आपके फ्यूचर को डिपिक्ट करता है, गोल्स को दिखाता है, आप गोल्स को कितना एब्जॉर्ब करते हैं, कितना अप्रोच करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के प्रति आपका क्या रवैया और क्या नजरिया रहता है, और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। और यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आप सभी को देना चाहती हूँ, एंड फील फ्री टू पास इट ऑन टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। तो ये टिप है, आपकी लाइफ को बेटर और सक्सेसफुल बनाने में आपको बहुत मदद करेगी। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे जो आपके सपने हैं, गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनको अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। सो उसमें एक है कि लीव सम मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड। आइडियली कहते हैं कि आप पेपर में रफली A4 साइज का जो पेपर होता है उसमें 1 इंच का मार्जिन छोड़िए, तो वो एक आइडियल मार्जिन है। उससे आपका अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो बॉन्डिंग है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, आपका कंफर्ट है, वो ऑप्टिमम रहेगा, बेस्ट रहेगा, और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। और साथ ही साथ में कभी भी आप जब पेपर पे लिखते हैं तो जहाँ तक कोई भी वर्ड पूरा आ सकता है तो उसको ज़रूर लिखें, जल्दीबाजी में या किसी और कारण से वहाँ राइट मार्जिन की जगह नहीं छोड़ें। जितना ज़्यादा आप राइट मार्जिन को यूटिलाइज करके पेपर पे लिखेंगे तो वो आपकी लाइफ में ये जो हमने एस्पेक्ट्स बताए थे,
ये वाले जो एस्पेक्ट्स बताए थे राइट मार्जिन के, आपका फ्यूचर की तरफ अप्रोच करने में आप पावरफुल अपने को फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, गोल्स को आप अच्छे से अकॉम्प्लिश करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, लाइफ में रिस्क ले पाएंगे। और कहते हैं आदमी कुछ भी बड़ा अगर करता है तो उसमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है, नहीं तो एवरेज करेंगे विदाउट, मतलब जितना मिनिमम रिस्क लेंगे तो उतना हमारे अचीवमेंट्स में भी उतना लिमिटेशंस आ जाएंगी। सो दिस इज फ्यू ऑफ द टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी। अब हम बात करते हैं बेसलाइन की। तो जैसा कि इसमें अगर आप देखें तो कुछ लाइंस ऊपर जा रही है और कुछ लाइंस नीचे जा रही हैं। तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा पर्सन ज्यादा खुश होगा? जिसके ऊपर लाइन जा रही है। वंडरफुल। और कौन सा थोड़ा डिप्रेस फील करेगा, लो फील करेगा? जो नाम लाइन जा रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि बेसलाइन क्या होती है। तो बेसलाइन जो है उसको हिंदी में आधार रेखा भी कहा जाता है। और बेसलाइन से बेसिकली असेंडिंग हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, डिसेंडिंग हो सकती है। तो असेंडिंग हमने देखा ऊपर की ओर जो जा रही है, तो उसके आधार पर देखिए लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे, ये तो होता नहीं है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को डील करने की अप्रोच या नजरिया व्यक्ति का कैसा है वो बेसलाइन आपकी बता पाती हैं। तो जिसकी असेंडिंग जारी होगी वो लाइफ के चैलेंजेस को देखते हुए ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव अप्रोच रखेगा, और अपवर्ड्स और राइजिंग उसका अप्रोच रहेगा, सोच रहेगा। अभी भी जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे तो वो व्यक्ति सोचेगा कोई बात नहीं, ये भी पार हो जाएगा, आई विल बी एबल टू हैंडल इट। और जिनकी राइटिंग डिसेंडिंग होती है वो उस समय अपनी जिंदगी में जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे उनको मुश्किलात का हो रहा है और या वो उनसे बहुत खुश नहीं हो पा रहे हैं इस समय में, तो इस मोमेंट में वो अपनी जिंदगी में थोड़ा उदास और सैड फील कर रहे हैं। दैट इज ओनली दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट पर्टिकुलर फेज। और अगर कोई बहुत सीधी राइटिंग लिखता है, बिना लाइन के ऐसे लिखता है एज इफ स्केल से लाइन खींची हुई है, तो वो पर्सन जो है वो स्ट्रेट बेस लाइन वाली राइटिंग है। इसमें उस व्यक्ति का जो फोकस है और डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा रहता है। यहां तक मैं समझती सबको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कई बार जो है बेसलाइन वो इस तरीके की भी होती है विच इज कॉल्ड वेवी बेसलाइन। तो अगर किसी की बेसलाइन वेवी है तो वो पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो मूड है उसको फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, या कोई भी काम को अगर पकड़ता है तो उसको करने की जो अप्रोच है उसमें शिफ्ट आता रहता है, और इस कारण से वो व्यक्ति का फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है और मूड स्विंग्स का चैलेंज उसको फेस करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि राइटिंग। अच्छा, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क एवरीवन विद योर परमिशन, by what time you want to complete the session? You can put it in the chat box, I'll check. तो अब हम ये देख, कोई पर्सन है जो बहुत छोटा छोटा लिखता है और कोई पर्सन है जो बड़ा बड़ा लिखता है, तो कौन सा पर्सन लीडरशिप स्किल्स ज्यादा अच्छी रखेगा? स्मॉल राइटिंग या बिग राइटिंग? बिग राइटिंग। बिग राइटिंग वाले की लीडरशिप स्किल्स बेटर होंगी। Okay, so with everybody's consent, we will try to wind up the session by 5:15. Is that okay? Okay, तो बिग राइटिंग वाले में लीडरशिप स्किल्स होंगी। तो राइटिंग का जो साइज है उससे हमें पता चलता है कि कोई पर्सन स्मॉल लिखता है या मीडियम लिखता है या लार्ज लिखता है, और राइटिंग किसी की एक्स्ट्रा स्मॉल भी हो सकती है, एक्स्ट्रा लार्ज भी हो सकती है। तो मुख्य हम 3 तरीके की राइटिंग की अगर बात करें तो जो स्मॉल लिखने वाला है वो डिटेल ओरिएंटेड होगा, और जो लार्ज बड़ा बड़ा लिखने वाला है वो पर्सन रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो इससे हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसका फोकस किस चीज पे ज्यादा रहता है, काम को पूरा करके रिजल्ट लेने में या उस काम की बारीकी या गहराई तक जाने में। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोफेशनल वर्क, आपका जो अप्रोच है वो आपकी हर चीज में दिखाई देगा। जो बड़ी राइटिंग वाले हैं वो एक्सट्रोवर्ट होंगे, सोशल होंगे, आउटगोइंग होंगे, फ्रेंडली होंगे, और जो छोटी राइटिंग वाले हैं वो थोड़ा शाय और इंट्रोवर्ट होंगे, और उनका ध्यान बारीकी पे, हर बात की बारीकी को गहराई में जाने में उन लोगों का फोकस रहेगा।
नाउ इफ वी लुक एट स्पेसिंग, तो हर व्यक्ति पेज को किस तरीके से यूज करता है, उसकी जगह को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, उसमें बहुत फर्क होता है। तो स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं तो वी सी दैट लाइन स्पेसिंग जो है, हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली एक लाइन जो है वो एक एक्टिविटी की तरह है और एक लेटर जो है वो एक थॉट की तरह है। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति के मन में कितने थॉट्स आ रहे हैं एक दिन के अंदर में, और उसमें वो कितनी एक्टिविटीज, कितनी गतिविधियां कर रहा है, वो हमारे को लाइन स्पेसिंग देख करके और वर्ड स्पेसिंग देख करके और लेटर स्पेसिंग देख करके पता चलता है। तो जो लाइन स्पेसिंग है, लेट्स से कोई भी एक पेज लिया, किसी व्यक्ति ने एक पेज पे कितनी लाइंस टोटल लिखी हैं, ऑन एन एवरेज 24 to 28 लाइंस एक व्यक्ति लिखता है पेज पर। अभी मान लीजिए आप, और काउंट करने से भी पहले आप जैसे ही देखते हैं तो देखते ही आपको पता चलता है कि ये पर्सन के पेज पे कितनी लाइंस हैं। अब जितनी लाइंस है वो दिन में उतनी एक्टिविटीज करता है, तो आपको पता चल सकता है कि ये व्यक्ति कितना मेहनती होगा, कितना हार्ड वर्किंग है, सारा दिन में कितनी एक्टिविटीज करता है, एक काम करने के बाद दूसरे काम को करने में कितना टाइम लेगा, उसका दिन का यूटिलाइजेशन कैसा है। अब हम बात करते हैं वर्ड स्पेसिंग की। तो वर्ड स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं तो लेटर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी, दो वर्ड्स के बीच में। लेट्स से वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर। तो अगर स्पेसिंग ज़्यादा है या स्पेसिंग मीडियम है या स्पेसिंग बहुत कम है, तो ये अलग अलग स्पेसिंग के हिसाब से हमें पता चलता है कि उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। बट एट द सेम टाइम हम इतना मोटा इतना तो समझ सकते हैं कि वर्ड स्पेसिंग जो है वो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को दिखाता है। आई यूजुअली लाइक टू गिव दिस एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक सोफा पड़ा हुआ है विच इज़ अ 3 सीटर एंड उसमें 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब जब आप वहाँ घुसते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है थोड़ा सा कि इतनी जगह में कैसे बैठूंगा, ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए हैं। यू कैन लुक एट योर वर्ड स्पेसिंग, वाइड वर्ड स्पेसिंग होनी चाहिए आपकी। एंड ऑफ कोर्स हम ग्राफोलॉजी में जब भी बात करते हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट एनी वन पर्टिकुलर ट्रेट, देयर आर मल्टीपल ट्रेट्स, इट इज़ अ मिक्स ऑफ सो मेनी ट्रेट्स, सो मेनी थिंग्स विच वी नीड टू ऑब्जर्व बिफोर कंक्लूडिंग कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। क्योंकि एक चीज़ को बाकी और भी ट्रेट्स हो सकते हैं जो शायद उस बात को डाइल्यूट कर दें, बट मोटे तौर पे ये देखा गया है कि वो पर्सन की वर्ड स्पेसिंग, जिसको जितना कंफर्ट है लोगों के साथ में, जितनी स्पेस चाहिए, जितनी क्लोजनेस चाहिए, उसके हिसाब से उसकी वर्ड स्पेसिंग उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं लेटर स्पेसिंग की। तो लेटर स्पेसिंग जो है वो ये दिखाता है कि वो पर्सन की नेचर सेक्रीफाइसिंग नेचर है, अपना सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करता है, या फिर उसकी सेल्फिश नेचर है, वो पहले अपने को दूसरों से आगे रखता है, पहले मेरी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स आई एम पुटिंग माई एफर्ट। तो ज़्यादा स्पेसिंग होती है तो हम अपनी ज़रूरतों की तरफ, हमारी जो ओरिएंटेशन है वो सेल्फ ओरिएंटेशन, वो प्रियोरिटी पे आ जाती है। अब हम बात करते हैं राइटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट की, विच इज कॉल्ड स्लांट। तो स्लांट में क्या होता है, व्यक्ति का इमोशन और इमोशन का जो एक्सप्रेशन है वो दिखाई देता है। अब जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो हर पर्सन, इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन हर पर्सन अपने को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उतना फ्रीली। तो ये आपके स्लांट से पता चलता है। स्लैंट 3 प्रकार के स्लैंट हो सकते हैं ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें, बैकवर्ड हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है। तो जैसा कि स्लैंट को देख करके ही हम समझ सकते हैं कि जिस पर्सन का स्लैंट वर्टिकल होगा, वर्टिकल हम पहले कवर कर लेते हैं, विच इज मेंशन्ड एट द लास्ट। तो जिसका वर्टिकल स्लैंट होगा वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होगा, उसका हेड ओवर हार्ट होगा, वो अपने इमोशंस में बह करके फैसला नहीं लेगा, इमोशंस को आउटवे करके रैशनली सोचेगा दिमाग से कि मुझे किस चीज़ का क्या करना है। और अगर उसका स्लैंट फॉरवर्ड होता है तो ऑफ कोर्स पीपल ओरिएंटेड अप्रोच होगी, एक्सप्रेसिव होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, फ्रेंडली होगा, सोशल होगा। और अगर बैकवर्ड हो जाता है तो
वो पर्सन अपने इमोशंस को होल्ड करके रखेगा, कहीं ना कहीं सप्रेशन होगा उसके अंदर में, और शाय होगा, और लोगों से कटने के कारण में अलूफनेस का ट्रेट भी दिखाई दे सकता है उसकी पर्सनालिटी में। सो अभी तक कैसा लग रहा है आप सभी को? Would anyone want to share? कुछ आपको सीख के कुछ पता चला आपको अपनी पर्सनालिटी का, या आपके आसपास के लोगों के बारे में कुछ आपको आइडिया लग? यस कांता जी प्लीज। Yes, thank you, ma'am, for giving me this wonderful chance. और मैम अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी और काफ़ी अच्छी लगी, और प्लस इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि हम जब खुद लिखते थे तो एक्चुअली खुद को नहीं पहचान पाते थे कि मतलब एक्चुअली में हम लिख क्या रहे हैं, मतलब ऐसा नॉर्मल सा लगता था कि हाँ लिख ही रहे हैं बस, बट अब पता चल रहा है कि हर एक राइटिंग का, स्पीच का, लाइनिंग का, सबका एक अपना इंपॉर्टेंस है, और जो कि उससे हम अपने बारे में बता सकते हैं। सो इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव मैम, थैंक यू सो मच। दैट्स वंडरफुल। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर, यू कैन ट्राई टू राइट आई लव समथिंग, यू नो, आई लव डैश, तो वो लिख लीजिए, एंड आई हेट डैश वो लिख लीजिए, और उसके बाद में पेपर के बैक साइड पे हाथ फेर करके देखिए, कैन यू फील द डिफरेंस बिटवीन द टू? Yes, anyone can speak so that I understand आपने किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? Yes, anyone who is sharing? कुछ फर्क लगा आई लव वाले सेंटेंस में और आई हेट वाले सेंटेंस के प्रेशर में? यस मैम। हाँ जी बताइए। मैम जो पॉजिटिव सेंटेंस था जिसमें आपने बोला था आई लव वाले में, तो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव सी फीलिंग, मुझे ऐसा पर्सनली बता रही हूँ, मुझे थोड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आई, और वो जो हेट वाला था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट लगा, आई मीन थोड़ा सा मीन। पीछे आपने हाथ लगा के देखा? यस मैम, यस। उसमें क्या फर्क है कुछ? यस मैम, मुझे थोड़ा डिफरेंस यही, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटेंस में थोड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आई मुझे। नहीं, कैन योर फिंगर्स फील एनीथिंग? फिंगर्स को पता चलता है ना आगे कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? यस मैम, आई कैन फील इट। ओके, वंडरफुल। तो प्रेशर की जब हम बात करते हैं, प्रेशर से हमारी फिजिकल एनर्जी पता चलती है, बॉन्डिंग पता चलती है, रेजिस्टेंस पता चलती है, और वास्तव में प्रेशर हैंडराइटिंग का एक ऐसा ट्रेट है जिसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है, रादर आई कैन से इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। तो प्रेशर 3 प्रकार का हो सकता है, ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो। हैवी हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लाइट हो सकता है, एक्स्ट्रा हैवी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा लाइट भी हो सकता है। कुछ लोग लिखते हैं तो तीसरे पेज पे भी पता चल जाता है कि सामने उस बंदे ने इस पे रख करके लिखा क्या होगा। उतना तक प्रेशर किसी किसी का डीप होता है, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वो हेल्थ के हिसाब से और पर्सनालिटी के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करने की बहुत ज़रूरत है, रादर देन इग्नोरिंग। तो अगर हैवी प्रेशर होता है तो वो पर्सन नॉर्मली केयरिंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर के, कोई भी काम को फुल एनर्जी से करते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम प्रेशर की। तो मीडियम जैसा कि शब्द बताता है, ना इधर ना उधर, तो दोनों तरीके के लोगों के साथ में हर प्रकार की सिचुएशन में हर प्रकार के इमोशंस के लेकर के वो लोग एडजस्ट कर पाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। और उसके बाद लाइट प्रेशर की अगर हम बात करें, तो लाइट प्रेशर की बात करें तो ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, पर स्टेबिलिटी थोड़ा कम होती है, क्योंकि प्रेशर नहीं डालने के कारण में फिजिकली भी वीक फील करते हैं। अब हम कनेक्शंस की बात देखते हैं। तो कनेक्शंस में जैसा कि यहाँ हमने देखा कि कई लोग जो है वो सारे लेटर्स जोड़ जोड़ करके लिखते हैं, और कई लोग जो है सारे लेटर्स अलग अलग लिखते हैं। ग्राफोलॉजी की भाषा में इसको कनेक्शंस कहते हैं। राइटिंग कैन बी कनेक्टेड
और इट कैन बी डिस्कनेक्टेड. एंड जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें इट इज नॉट अबाउट गुड एंड बैड, इट इज जस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट. तो अगर कनेक्टेड होता है तो आपके फ्लो ऑफ थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो पर्सन जो है लेसन्स को बहुत इजीली याद कर लेगा, रट्टा मारने में बड़े निपुण होंगे. लेकिन अगर डिस्कनेक्टेड राइटिंग होती है तो ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं. नॉट कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे क्योंकि रट्टा नहीं मार पाते, पर उनको रट्टा मारने से ज़्यादा उस चीज़ के लॉजिक को समझ करके फिर वो उस पार्ट को याद कर पाते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस. तो डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस, अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो इट इज़ बेस्ट प्रेफर्ड कि हम थोड़ा सा मिक्स्ड राइटिंग को यूज़ करें. तो ये कुछ चीज़ें हमने हैंड राइटिंग के बारे में कवर की. बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है जोन्स का, विच वी आर नॉट कवरिंग टुडे. वो विल तो ब्रीफली मैं सम अप कर देती हूँ. राइटिंग में 3 जोन्स होते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन. अपर जोन के लेटर्स जो ऊपर की तरफ जाते हैं, एच एल ये लेटर्स हैं. तो ये अपर जोन जो है वो हमारे आइडियाज़ को, फ्यूचर को और प्लानिंग को डिनोट करता है. उसके बाद हम लोअर जोन को अगर देखें, जो लेटर जी और वाई है, तो वो हमारे पास्ट को, फिजिकल ड्राइव को और एग्जीक्यूशन को डिनोट करता है. और मिडिल जोन जो है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के प्रति क्या अप्रोच है, और हमारा अपर और लोअर जोन के बीच में कोऑर्डिनेट करने का वो जो है कोऑर्डिनेटिंग जोन हो जाता है. दोनों के अपर और लोअर जोन के बीच का कोऑर्डिनेटिंग जोन होता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, जो इस सेशन का मैं कहूँगी की टेक अवे है. तो बेसिकली राइटिंग हम अपने रोज के जीवन में बहुत कम कर रहे हैं. दिस वी ऑल विल वेरी इजीली अग्री. बट एट द सेम टाइम अगर हम लिखना भी चाहें तो बहुत बार लोग बोलते हैं आई डोंट वांट टू राइट अबाउट माय डेली रूटीन, और आई डोंट वांट टू मेंटेन अ जर्नल. तो फिर क्या लिखें. और दूसरी चीज़ होती है कि हमारी, अगर हम लिखते भी हैं तो जो हमारी पर्सनैलिटी है हम उसी हिसाब से राइटिंग के फॉर्मेशंस करते हैं. सो इज देयर समथिंग वी कैन डू अबाउट इट. सो माय सजेशन टू एवरीवन हियर इज कि हम यहाँ जो पैटर्न्स ये मैंने आपको दिखाए हैं, ये पैटर्न्स आप फॉलो कर सकते हैं. आप सभी के पास में रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भी आया होगा. उस फॉर्म का चाहिए तो आप प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं. एंड these are 3 patterns which I am giving you complimentary today, जो अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, and let me everybody if you want you can take a screenshot of this. इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मेशन कैसे करना है. and now I will stop sharing this screen and I will change the I will share another board. So let me just create lines. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Just give me 1 moment. Is the screen visible to you all? Hello? No. No, ma'am. Somehow No. I'm not able to share the screen.
Now it is Okay, getting. yeah. So let's see, जो हिंदी की रूल्ड बुक होती है आपकी, ठीक है, वो रूल बुक आप ले लेंगे और उसमें ये जो एस पैटर्न है, द फर्स्ट पैटर्न, आपको ऊपर से लेकर के नीचे और नीचे से ऊपर, लाइक दिस. और जहां पे ऐसे ब्रेक आएगा, बिकॉज हाथ पूरा पेज एक बार में नहीं कवर कर सकते, वहां पे आप आगे ऐसे इसको और कंटिन्यू कर लेंगे जहां से स्टॉप हुआ टिल द एंड ऑफ द पेज. इज दिस क्लियर? एंड I'll be happy to monitor you. I'll share my contact number as well, and you can reach out to me with on WhatsApp with your pattern. अगर कहीं पर भी कुछ करेक्शन या सजेशन होगा, I'll be happy to suggest you that. और जो आई पैटर्न है, आई डॉटिंग, उसमें 1 2 3 4 5 और उसके बाद में 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको डॉट लगाना है, एंड देन अगेन यू कंटिन्यू लाइक दिस, 1 2 3 4 5. क्लियर है? एंड द फोर्थ पैटर्न इज, इसमें 3 स्टैंडिंग लाइंस हैं, 1 2 3, और उसके बाद में 4 स्लीपिंग लाइंस हैं जो नीचे से स्टार्ट होगी. दिस इज लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7 एंड लाइन नंबर 8. फिर से 1 2 3 4 5 6 and 7. So these are the 3 patterns. There are many more patterns which can be suggested on a specific things. लेकिन आप ये जो 3 patterns हैं, इनको जब करेंगे, so this first pattern, ये करने से आपको जो concentration है, stress और anxiety जो है वो आपका कम होगा. आपको उसमें stress और anxiety में बहुत relief मिलेगा, आपको बहुत relaxed feel होगा. आई पैटर्न से आपका जो concentration और focus है वो improve होगा. और ये ग्रोथ पैटर्न है, इससे आपकी विल पावर और डिटर्मिनेशन जो है वो रीइंफोर्स होगा. ट्राई दीज पैटर्न्स. बच्चों के लिए एक और पैटर्न आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ. अच्छा, आप में से कितनों के पास घर में बच्चे हैं छोटे? छोटे मीन स्कूल गोइंग? यू कैन रेज हैंड. फरीदा, यू कैन चेक प्लीज हाउ मेनी आर देयर विद चिल्ड्रन. तो आप बच्चों को ये करवाइए पैटर्न, 2 लाइन्स नोटबुक पे, लाइन डॉट लाइन डॉट. एंड जब भी करेंगे, इट्स माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दैट प्लीज make sure that you share with me, so that if there is anything that you are practicing wrong or incorrect, I'll be happy to suggest and guide you. Neha ji, is it okay I share my contact number, or would you try to coordinate? No, ma'am, it's okay. No problem. So, okay, I'm sharing I'm putting my number in the chat. Everybody can pick it from there. So we are done with the sessions. Signatures ka I have not covered today. So we can do it some other time. My name is Neeru Gupta. मेरा social media handle है Now I would like to hear from you. Is there any question, or is there anything you would want to share, or anything you would want to ask? Acha, one last thing. Can everybody come on camera for a moment? And just raise your hand if you would practice these patterns. I can guarantee, मैंने जिसको भी बोला और उसने किया, मैं बोलने के लिए तो मैंने बहुतों को बोला होगा, बट जिसने भी किया है, इंक्लूडिंग आपकी एनजीओ की जो बबीता जी हैं, दैट्स हाउ वी कनेक्टेड. तो कोई भी पर्सन ने अगर पैटर्न किया, इट हैज़ नॉट इवन टेकन 3 days. और मैं एडवोकेट करती हूँ, मैं सजेस्ट करती हूँ आप 30 days करिए, एंड यू विल
have wonderful experiences, shift in your life, in your thought process, in your mind, in your behaviorism. तो ये फ्री की दवाई मैं नहीं कहूँगी आपको. I feel we all are fortunate, we have something which can alter our life. और ये अगर कोमा पेशेंट्स को कराया गया, पैरालिसिस पेशेंट्स को कराया गया, तो भी उनको बहुत बेनिफिट हुआ है. मैं आपसे अपना केस शेयर करना चाहूँगी. I had practiced these patterns for my borderline diabetes and thyroid, which I had struggled for 1 year. तो 1 साल से मैं हर 3 महीने में टेस्ट कराती थी और बॉर्डरलाइन ही चल रहा था. So वो आप समझ सकते हैं, वो डर रहता है कि अब बॉर्डरलाइन से कब डायबिटीज और थायराइड डिक्लेयर होगा. And after practicing the patterns for 45 days, I got my reports done and doctor suggested now tests are not required. Diabetes because it is hereditary also and I am 50 plus. तो diabetes के लिए ज़रूर बोला कि साल में एक बार regular routine checkup की तरह से करा लेना चाहिए. Thyroid का तो कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है forever unless I still feel there is some problem. तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और लोगों के जो मैं कभी भी आपसे शेयर कर सकती हूँ. बट द पॉइंट इज आपको तभी मजा आएगा जब आप करोगे. Nobody else can do it for you. So my request to all of you, कागज कलम से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए और उसका लाभ लीजिए, ताकि आप अपना जीवन तो बेहतर बनाए ही, आने वाली जो जनरेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके घर में जो आपसे छोटे लोग हैं, उनको भी कुछ बेहतर चीज़ और बेहतर जीवन जीने के लिए कुछ गाइडेंस और कुछ रास्ता दे पाए. एंड फॉर चिल्ड्रन, जब भी वो 17 साल के होते हैं तो दे शुड ऑलवेज गो फॉर अ गाइडेंस फॉर व्हाट टू क्रिएट द सिग्नेचर. So thank you so very much for being here and for listening to me. I hope the session was fruitful, useful. आपका किसी का भी कोई feedback हो, आपकी कोई expectations हो या कोई questions हो, you are more than welcome to share that. Thank you, ma'am. I would like, if anybody has any kind of feedback, please share with ma'am. Yes, I want to share. Can I? Kanta ji, we can't hear you. Now am I audible? Yeah, yes. Am I audible now? Yes. बोलिए. So the session was seriously so grateful to me, and personally, if you ask me, ma'am, तो मतलब आज काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मतलब नहीं पता थी इससे पहले, बट जब वो पैटर्न्स वाला आपने बोला और जो भी सारी चीजें थी, तो ये सब न्यू था. बट हाँ, धीरे धीरे ग्रैब करने में टाइम लगेगा. बट स्टिल अब मैं भी ट्राई करूंगी कि जो पैटर्न्स आपने बनवाए, जो ड्रॉ करवाए, वो वेल अभी तो नहीं हो पाए, सीरियसली मेरे से इतने अच्छे से नहीं हो पाया. बट हाँ, मैं उसको फिर दोबारा ट्राई करूंगी. But thank you so much, ma'am. That's a very honest feedback. और आप जो बोल रहे हैं कांता जी, वही रियलिटी है कि हम फर्स्ट टाइम जब ट्राई करते तो नहीं हो पाता है. आई वुड रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू, आप जब ट्राई करें तो आप 2-2 लाइन सैम्पल की तरह करके फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, सो दैट आई कैन गाइड यू व्हाट इज द करेक्ट वे आपकी वो पैटर्न फॉर्मेशन देख करके. बिकॉज नोबडी डज इट करेक्ट इन द फर्स्ट टाइम. And I have seen everybody after guidance is able to do it well, and of course they are able to see the experience of it as well. Sure, ma'am. Thank you so much for putting it in front of everyone. तो सबको पता है कि अगर हमने किया है और मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. वैसा ही होता है सबके साथ में. एंड ग्रेजुअली 1 या 2 बार गाइडेंस करने पर यू आर एबल टू मैनेज इट ऑन योर ओन. हाँ जी, राजकिशोर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करके बोलिए प्लीज. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. This information for new for me. I'm really thankful because I will apply our future, and it is for me new for me, ma'am. Wonderful. Thank you so much for attending, Rajkishore. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन था. थैंक यू सो मच. Thank you, Dr. Anamika. I would like to thank each and everybody of you for attending the session,
And we extended a heartfelt gratitude to Neeru ma'am for joining, and Fatima ma'am also, though we will not be able to hear her, but thank you so much for joining, ma'am. And as we conclude, I hope that this session would be helpful for each and everybody of you, and hope to see you in future sessions also. Thank you so much, ma'am, for joining. Thanks, everyone. Bye-bye. Bye. Stay Have a great. Thank you. Thank you so much, ma'am.